میں اس رات اسلام آباد سیکٹر G13 کے ایک ویران پل سے گزرتے ہوئے خوفزدہ ہو گیا۔ اس پل پر کوئی مسئلہ تھا، کوئی عصائب تھا کہ جس کے باعث یہاں سے رات میں گزرنے والی کو ریت سرخ نظر آنے لگتی تھی۔ میں نے سوچا آئندہ اس پل سے رات کے وقت نہیں گزروں گا۔ کچھ دن بعد میری ملاقات اس سیکٹر میں رہنے والے دوست عتیق سے ہوئی۔ میں نے اس پل کے حوالے سے اپنا سارا واقعہ سنایا اور خیال ظاہر کیا اس جگہ پر ضرور کچھ اعصابی اثرات ہیں، تو وہ ہنسنے لگا۔ ارے کچھ نہیں بھائی، وہم ہے تمہارا، ہم تو پتہ نہیں کتنی بار اس پل پر سے گزر چکے ہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی، اور کبھی کبھی تو آدھی رات کو بھی۔ ہمارے ساتھ تو کبھی کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، پر فرض کیا کہ اس دن واقعی گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں کوئی خاصی خرابی تھی جس کی وجہ سے روشنی کچھ دیر کے لیے سرخ ہو گئی۔ لیکن بالکل یہی مسئلہ موٹر سائیکل کی لائٹ کے ساتھ کیوں پیش آیا؟ میں بولا۔ عتیق کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، یار ویسے یہاں چند سال پہلے ہمارے سامنے ایک دردناک واقعہ ضرور پیش آیا تھا۔ میں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے بات کو جاری رکھتے ہوئے بتایا، جس زمانے میں ہم نے یہاں اپنا گھر بنانا شروع کیا تھا تو تعمیر کے دوران اس سیکٹر میں ایک گھر کرائے پر لے لیا تھا۔ وہ گھر اس پل کے قریب ہی تھا۔ یہ پل تھا تو کمزور تھا، لیکن علاقے میں جاری تعمیراتی کاموں کی وجہ سے اس پل سے ریت، بجری اور اینٹوں کی باری باری ٹیمپرز گزرتے تھے، حتیٰ کہ یہ خدشہ ہونے لگا کہ کہیں یہ پل ٹوٹ کر ریلوے لائن پر ہی گر نہ جائے۔ چنانچہ سیکٹر کے انتظامیہ نے پل کے دونوں طرف لوہے کے گارڈر لگا دیے تاکہ یہاں سے بڑی گاڑیاں نہ گزر سکیں۔ اس اقدام کے بعد ڈیمپرز دوسرے راستوں سے آنے جانے لگے اور یہ پل ویران سا ہو گیا۔ اچھا، میں غور سے سن رہا تھا۔ وہ سردیوں کی ایک رات تھی، ویران پل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بدقسمتی سے ایک چھوٹا ٹرک اس طرف آیا اور پل کی طرف بڑھنے لگا۔ ٹرک کے پچھلے حصے میں کئی مزدور سوار تھے اور وہ کھڑے ہوئے تھے۔ ٹرک تیزی رفتاری سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ڈرائیور اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ یہاں سڑک ایک رکاوٹی آہنی شہتیت لگا ہوا ہے۔ اس نے اپنی رفتار میں کوئی کمی نہیں کی اور ٹرک اس گارڈر کے نیچے سے تیزی سے گزر گیا۔ ٹرک تو گزر گیا، لیکن اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے تھے وہ نہ گزر سکے۔ عتیق خاموش ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ ٹرک پر سوار مزدوروں کے سر اس آہنی گارڈر سے ٹکرائے اور نتیجتاً کئی لوگ لہولہان ہو کر ٹرک سے باہر گر گئے۔ مزدوروں کی چیخیں پکار سن کر ڈرائیور نے بریک تو لگا لیا، لیکن اس وقت تک حادثہ ہو چکا تھا۔ کئی افراد کے سر پھٹ گئے، وہ خونم خون ہو گئے، بلکہ وہ تو جان سے ہی گزر گئے۔ پل پر ہر طرف خون ہی خون پھیل گیا۔ عتیق یہاں تک بتا کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، لیکن اس واقعے کے بعد آج تک یہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ یہ تم پہلے آدمی ہو جسے پل کی زمین سرخ نظر آئی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ عتیق کی گفتگو سن کر میں تو سناٹے میں ہی آ گیا۔ میں کئی دن تک سوچتا رہا کہ کیا اس طرح کی چیزیں کیا کسی خاص فریکوئنسی پر ہی انسانوں کو نظر آتی ہیں۔ مجھے رات جو اس پل کی مٹی سرخ نظر آئی، کیا وہ میرا وہم تھا یا اس کا کوئی تعلق اس حادثے میں بہنے والے خون سے بھی تھا؟ آدھی رات کی آوازیں۔ میرا بچپن کراچی کے علاقے ملیر میں گزرا ہے۔ سعود آباد سے آگے ملیر توسیع کالونی میں، جسے عرف عام میں کھوکھرا پار بھی کہا جاتا ہے، کھوکھرا پاری ایریا کی ایک گلی جس کے اندر عبدلیہ کے تعمیر کردہ 12 کوارٹرز کے آمنے سامنے 2 قطاریں تھیں۔ اس گلی کے بالکل درمیان میں ہمارا گھر تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں سیکنڈری کلاس میں تھا۔ میٹرک میں امتحان چونک بورڈ کے تحت ہوتے تھے، اس لیے ہم پڑھائی کی طرف سے خاصی فکر مند رہتے تھے۔ ہر وقت امتحان کا خوف طاری رہتا تھا۔ جیسے جیسے امتحانات قریب آتے ہماری نیندیں اڑ جاتی، دن تو دن راتیں بھی جا کر گزرتی، رات پڑھتے پڑھتے گزر جاتی اور اکثر فجر کی اذانیں بلند ہو جاتی۔ جن دنوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان دنوں ہم پوری رات ضرور جاگتے تھے، لیکن ان دنوں کراچی کے باسی رات گئے تک جاگنے کے عادی ابھی نہیں ہوئے تھے۔ رات کو شہر بالکل خاموش اور پرسکون ہو جاتا تھا۔ بالکل برسن روڈ کی رہائشی میرے دوست احمد نصاری بتاتے ہیں کہ 70 کی دہائی میں رات کو اس قدر خاموشی ہو جایا کرتی تھی کہ میلوں دور گاندھی گارڈن کے چڑیا گھر میں جب شیر دہاڑتا تھا تو اس کی خوفناک گرج کی آوازیں ہمارے گھروں تک آتی تھی اور عورتیں بچے سہم جایا کرتے تھے۔ میں بھی تقریباً اسی دور کی بات کر رہا ہوں۔ میں اپنے گھر کے کسی کمرے میں بیٹھ کر پڑھتا تھا۔ وہ گلی کی سمت تھا۔ اس کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی جو گلی میں کھلتی تھی۔ اس
कमरे की छत बल्कि घर के सारे कमरों की छतें एस्बेस्टॉस की नालीदार शीटों से बनी हुई थी। बल्कि इस दौर में तकरीबन हर मकान की छत इसी तरह के सीमेंट और जस्ट की शीटों से पर मुश्तमिल होती थी। लोहे और कंक्रीट की से तैयार करदा आरसीसी की छतें तो आमतौर से अमीर आबादियों में ही नजर आती थी। तो इस कमरे के इन रात जगहों में 2-3 मरतबा कुछ अजीब वाक़यात पेश आए। एक मरतबा सर्दियों की एक रात की किसी लम्हे जब मैं पढ़ाई में मनहम था तो अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मुझे यूं लगा जैसे हमारे घर के मगरबी कोने से कोई भारी भरकम शख्स छत पर चढ़ा है और ये इसके वजनी कदम रखने की आवाज़ है। मैं अभी पूरी तरह चौंका भी नहीं था कि इस शख्स ने अपना दूसरा कदम भी छत पर रख दिया। लेकिन ये क्या, इसका दूसरा कदम सीधा मेरे कमरे के ऊपर आकर पड़ा था और ये एक खासी लरज़ खेज बात थी क्योंकि इन 2 कदमों के दरमियान कोई 30 फुट का फासला था। पिछले कमरे और मेरे कमरे के दरमियान कम से कम 30 फुट का फासला तो था। मेरी तो सीटी गुम हो गई। ये कैसी दियोकामत बला थी कि जिसका एक कदम ही 30 फुट का था। कुछ समझ में ना आया। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया कि अब क्या होता है, लेकिन इसके बाद कुछ ना हुआ। बिल्कुल खामोशी तारी हो गई। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने कमरे के चारों कोनों में फूंका और डरते डरते अपनी पढ़ाई की तरफ मुतवज्जे हो गया। एक और रात मैं इसी तरह कमरे में बैठा पढ़ रहा था। खिड़की खुली हुई थी। गली में हमारा घर बिल्कुल दरमियान में था। हमारे दोनों तरफ 6-6 घर थे और गली तकरीबन 300 फुट लंबी थी। आधी रात का वक्त होगा कि अचानक गली के जनूबी सिरे से मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई किसी को बुलंद आवाज़ से पुकार रहा हो। मैं हैरान हुआ कि रात के इस पहर सन्नाटे में कोई क्यों आवाज़ लगा रहा है, लेकिन अभी मैं ये सोच ही रहा था कि वही पुकार फिर सुनाई दी। पहली आवाज़ ने तो मुझे पर कोई असर ना डाला, लेकिन इसी दूसरी आवाज़ पर मैं लरज़ कर रह गया क्योंकि ये आवाज़ अब गली के दूसरे कोने से सुनाई दे रही थी। यानी वही पुकारने वाला एक ही लम्हे में 300 फुट दूर पहुंचकर फिर आवाज़ दे रहा था। या अल्लाह, मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ गई। मैंने जल्दी से खिड़की बंद की, लाइट ऑफ की और ओढ़ा लपेट कर सो गया। इस तरह एक और रात का जिक्र है। कमरे की लाइट जल रही थी और मैं हस्बे मामूल पढ़ रहा था। आधी रात का वक़्त होगा। गली की खिड़की खुली हुई थी। खिड़की मेरे सर से कुछ ऊपर थी। अचानक मुझे यूं लगा कि खिड़की के बिल्कुल बराबर में बाहर गली में कोई बत्तख खड़ी चीख रही है। इसने कह करके एक जोरदार आवाज़ निकाली और फिर खामोश छा गई। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि हमारे मोहल्ले में तो किसी ने मुर्गी तक नहीं पाली थी। ये बारी आवाज़ वाली बत्तख आधी रात को यहाँ कहाँ से आ गई। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि बत्तख फिर बुलंद आहंग से चिल्लाई। मैं फौरन अपनी जगह से उठा और खिड़की से गली में झांका। गली में तो कुछ भी नहीं था, बस सन्नाटा था। मैं कुछ ना समझ पाया और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। लेकिन अभी चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि फिर वही खौफनाक गैर इंसानी आवाज़ आई कि जिसे मैं बत्तख की आवाज़ समझ रहा था। मैं डर गया। जल्दी से खिड़की बंद की, लाइट ऑफ की और पढ़ाई मौकूफ करके सो गया। आज कई अर्से गुजर जाने के बाद भी जब मैं इन रातों में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में सोचता हूँ तो अब भी खौफज़दा हो जाता हूँ। अल्लाह जाने वो सब क्या था। आसिफ भाई हमारे एक दरीनो दोस्त हैं और इस्लामाबाद में रहते हैं और हमारी तरह सैर व सियाहत के शौकीन भी हैं। जब भी मौका मिलता है तो हमारे साथ या अपने अहल खाना के साथ पहाड़ी वादियों में घूमने निकल जाते हैं। चंद साल पहले का जिक्र करते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ मरी गए। सर्दियां शुरू हो चुकी थी लेकिन अभी बर्फ़बारी का आगाज़ नहीं हुआ था। वो सुबह के वक्त अपनी गाड़ी में घर से निकले और इरादा यही था कि गलियात में दिन गुजार कर और रात को माल रोड की चॉकलेट कॉफ़ी पीकर इस्लामाबाद वापस आ जाएंगे। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था और वो चूँकि मरी का ही रहने वाला था इसलिए यहाँ की सड़कों के हर मोड़ और पहाड़ों के सारे नशीब अफराद से अच्छी तरह वाकिफ था। गाड़ी फराटे बढ़ती बुलंदियों की तरफ रवां थी और मौसम भी अच्छा था, इसलिए सब इस सफ़र से लुत्फ़ ले रहे थे। प्रोग्राम के मुताबिक दिन भर तो वो मरी और गलियात में मुख्तलिफ मकामात पर घूमते रहे और फिर शाम के वक्त माल रोड पर पहुँच गए। इस वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और खनकी बढ़ गई, मगर माल रोड की रौनक, रोशनी और रंगारंगी ने इस बेके मौसम को भी पुरलुत्फ़ और यादगार बना दिया। छोटी मोटी ख़रीदारी, खाना खाने और फिर कॉफ़ी पीने में खासी रात हो गई। जब ये लोग मरी से इस्लामाबाद वापसी के लिए निकले तो रात के 12 बजे माल रोड से बाहर निकलकर सनी बैंक मोड़ से होते हुए ये चीका गली
और वहां से लवेर टोपा और मेसाड़ी तक सिंगल रोड से गुजरकर मरी एक्सप्रेस वे की नई डबल रोड पर आए तो वो पुरसुकून हो गए। इस वक्त तक बारिश खासी तेज हो गई, लेकिन चौंक अब इस्लामाबाद तक सफर इस शानदार हाईवे पर था, इसलिए कोई परेशानी नहीं थी। बारिश की बूंदछाड़ विंडो स्क्रीन को धुंधला कर रही थी, मगर गाड़ी के वाइपर इन आबी हमलों का मर्दाना वार मुकाबला कर रहे थे। बाहर ठंड की वजह से गाड़ी के शीशे अंदर से धुंध आलूदा होने लगे तो ड्राइवर ने कार हीटर ऑन कर दी। थोड़ी ही देर में गाड़ी में गर्म हवा सरसराहने लगी, जिसने न सिर्फ जिस्मों को आसूदगी बख्शी बल्कि विंडो स्क्रीन पर से बखारात भी गायब कर दिए। अब हेडलाइट्स की तेज रोशनी में सड़क दूर तक नजर आ रही थी। जमीन पर कूड़े की तरह बरसने वाली बारिश की मोटी मोटी बूंदें सड़क पर एक सैलाब तख्लीक कर रही। पिछली सीट पर बच्चे तो गनूदगी में थे, अलबत्ता आसिफ भाई और ड्राइवर अलर्ट थे। बारिश तेज होती जा रही थी और इसकी बूंदें जो कुछ देर पहले गाड़ी की छत पर जिल्तरिंग बचा रही थी, अब एक गरजदार आवाज में तब्दील हो चुकी थी। सड़क के अतराफ में नजर आने वाले पहाड़ अंधेरे में आसमान ही का हिस्सा महसूस होते थे। बस इनके नशीब अफराज पर मौजूद घरों की टमटमानी रोशनियों से अंदाजा होता था कि ये पहाड़ हैं। अलबत्ता बार बार गूंदगी बिजली की चमक से अचानक इन पहाड़ों की खदोखाल वाज़ेह हो जाते और मंजर कुछ खौफनाक सा हो जाता। गाड़ी पतरे आटा वाले मोड़ से कुछ आगे आई होगी कि बिजली जोर से खड़की और इसकी रोशनी में दूर सड़क के किनारे कुछ इंसानी हुलिये खड़े नजर आए। आसिफ का कहना था कि वो रात इसके पहर इस मूसलाधार बारिश में खड़े इन लोगों को देखकर कुछ हैरान हुए। इन पर ऐसी क्या आफत आन पड़ी है जो वो इस खराब मौसम में सड़क पर आकर खड़े हो गए हैं। गाड़ी रफ्ता रफ्ता इनके करीब हुई तो अंदाजा हुआ कि वो मर्द नहीं बल्कि सफ़ेद चादरों में मबरूस 3 बारी बरकम औरतें हैं जो अपने चेहरे चादरों में छुपाए हमारी गाड़ी को करीब आता देख रही हैं। अभी गाड़ी इनसे कुछ फासले पा रही थी कि इनमें से एक ने हमें हाथ का इशारा दिया। आसिफ भाई कहते हैं कि मुझे यूं लगा जैसे वो हमसे लिपट लेना चाह रही हैं, लेकिन गाड़ी में तो जगह ही नहीं थी। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा तो वो अचानक पुरस्कार सी आवाज़ में बोला, सर छोड़ दें, इनको छोड़ दें, इनकी तरफ मत देखें, ये इंसान नहीं, ये कोई और मखलूक हैं। क्या मतलब? मैं चौंका। जी सर, बस जल्दी से निकलते हैं और आप पीछे मुड़कर भी मत देखिए, वो सरगोशी में बोला। आसिफ भाई कहते हैं हमारी इस गुफ्तगू के दौरान गाड़ी इन सफ़ेद पोशों के करीब पहुंची और रुके बगैर इनके बराबर से गुजरने लगी। मुझे ड्राइवर पीछे देखने से मना कर चुका था, लेकिन मैंने फिर भी तजस्सुस से मजबूर होकर सर घुमाया और इनको देखने लगा। लेकिन ये क्या, वहाँ तो कोई भी नहीं था। गाड़ी तो इन सफ़ेद हुलियों से अभी चंद ही फुट आगे आई होगी, लेकिन वो वहाँ से यूं गायब हो चुकी जैसे कभी वहाँ कोई खड़ा ही नहीं था। सड़क के साथ ऐसी कोई जगह भी नहीं थी कि जहाँ वो चश्मे ज़दन में छुप सकते हों। तो क्या वो लोग फिजा में तहलील हो गए? मैं सन्नाटे में आ गया। बच्चे पिछली सीट पर बदस्तूर सो रहे थे। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा, वो ज़ेर लब कुछ पढ़ रहा था और नज़रें सड़क पर रखे हुए गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ाए चला जा रहा था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मोरल, इखलाकी, सबक आमूज़ और पुरस्कार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।